हम अभी ये ड्राइव करेंगे। Oh my God! Full throttle दे रखा है and it just got up. Ballistic mode is really nice, dude. Region off कर देंगे तो better है. There's less room to move. Let's go. The whining sound is nice. क्योंकि मैं और पीछे जाना चाहता हूँ and I want to sit comfortably but I'm not able to. Let's combat. वैसे तो फीचर्स भरे पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या डाल दिया अल्ट्रा वॉयलेट ने। It gives you that adrenaline rush. इसको ऑफ रोड लेके जा सकते हैं क्या? आई थिंक यस, बिकॉज सीट का थोड़ा मेरे को इश्यू लगा। यू कैन एक्चुअली टूर ऑन दिस एक्सेप्ट फॉर द सीट, बट मैं ही चूचू इधर चला रहा तो नहीं चला होगा। मैं बैलिस्टिक मोड से निकलूंगा ही नहीं भाई, मैं लूंगा रीजन। आई डोंट जीन जनरल में कोई रीजन नहीं पसंद था। ओहो हो, ये लाल 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 दिख रहे हैं। अभी हम है इको मोड में, मैं अभी तक वहां पहुंच जाता बैलिस्टिक में। सलमान खान बन जाऊं, फुटपाथ पे चढ़ा दूं। ट्रैक्शन कंट्रोल शुक्रिया। हेलो एवरीबॉडी टू द न्यू वीडियो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं द न्यूएस्ट लॉन्च बाय अल्ट्रा वॉयलेट, द अल्ट्रा वॉयलेट F47। सो हम लोग उनके शोरूम गए, उनसे बात करी कैसा है, क्या क्या नए फीचर्स हैं। तो दिस इज द राइड रिव्यू ऑफ दैट particular day. उसके बाद we'll talk about the bike. So let's get into the drive. Chalo guys, we are here at Ultraviolet and we are today driving the X47। हमने ये जस्ट ड्राइव करी है, इसकी वीडियो आ चुकी होगी चैनल पे। हम अभी ये ड्राइव करेंगे। This is the newest launch by Ultraviolet. We just drove that and saw that it is goddamn amazing. Let's look at this because इसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी होनी चाहिए पूरे चीज़ों की। सस्पेंशन बड़े हैं, बाकी सब भी है। तो लेट्स गो टेस्ट ड्राइव दिस। तो ऑफ कोर्स क्लच नहीं है बाइक में, so remove the stand. You need to hold the brake. The brake. And it's a long press on the ignition. If this symbol is there, then the motor is on. Okay. Okay. And if you hold the brake again and click on O for the long press, it will go for the reverse mode. And if you just click one more click, it will go to the power. This is like just a parking assistance. If you keep the long press again, complete long press in the O, it will go to the normal driving mode. Hold the brake over there. Normal mode, okay. When you're driving, when the throttle is zero itself, you will be able to change the modes with a single click. Got it. Okay? And in the region, you'll be able to see. At the right, you'll be able to increase it. The region. At the left, you'll be able to decrease it. Okay. एक बार बैक फंक्शन ट्राई कर लेते हैं। And the rear brake. रेयर ब्रेक इज हियर। ऑफ कोर्स ये थोड़ा ऊपर है तो ये टेस्ट भी इजीली होगा इसका। फुल थ्रॉटल दे रखा है एंड इट जस्ट गॉट अप। नाइस। अभी इसको प्रेस करके होल्ड करेंगे। आगे लीन एंगल है, सो वी विल बी एबल टू सी हाउ मच वी लीन आल्सो। ग्लाइड में चलते हैं, क्लच ब्रेक कुछ नहीं है। चलो let's go, let's beat the traffic and take a U-turn. Hi sahab, it feels like I'm in the bike. Normally sports bike में क्या होता है, sorry adventure या bikes में क्या होता है, it feels like you're sitting on top of the bike. हाँ, this one is very calm, glide is very calm. अभी region is on level 3, इसको हम छोड़ दूंगा तो हाँ होगी। region ऑफ कर देंगे तो better है, because I don't like region, I get back pain from region. भाई बेस्ट है भाई region ऑफ, पर वो 35 पे लॉक, यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे कम होती रहेगी। हाथ छोड़ सकते हैं, उसमें हाथ नहीं छोड़ सकते थे। ऑफ कोर्स really nice, maneuverable. ऑफ कोर्स थोड़ी maneuverable नहीं होती, क्या बोलते हैं, it's not as maneuverable as the X47. There's less room to move because I'm a little taller, तो मेरे को थोड़ा और पीछे चाहिए। I wish I could have gone back like this, but okay. Let's go. The whining sound is nice. Change to combat. Oh my god, dude. भाग रही है साला. It's really nice. Okay, this is another thing. जैसे ही मैं थोड़ा aggressive चला रहा हूँ तो just region on कर लेते हैं। It's really nice. ये basically kilowatt per kilometer है। जितना energy consumed by the battery
दिस इज दैट मच कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है करंटली 4 किलोमीटर। अगर ये आप इसमें दिखा रहा है, अगर मैं 52 के अंडर रखूंगा तो 188 किलोमीटर रेंज देगी है। अगर मैं इसको ऑफकोर्स ग्लाइड मोड में इसको 60 के अंडर रखूंगा तो 107 रेंज देगी, और अगर मैं ग्लाइड में 40 के अंडर रखूंगा तो 145 रेंज देगी। अब इसका चार्ज ऑफ है तो इसलिए ये है, बट इफ यू सी छोड़ते ही डाइव कर रही है क्योंकि रीजन लेवल 5 है। अगर रीजन में 0 कर दूं इट्स फाइन एंड इट्स डिसेंट, यू कैन लीव योर हैंड्स, मस्त चला सकते हैं। ग्लाइड नहीं, कॉम्बैट, लेट्स कॉम्बैट। 5 I think 5 is good. It's good dude ऐसे ट्रैवल करने में, बट मेरे को सीट पसंद नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, नेशनल एवरेज के हिसाब से मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, उसके हिसाब से ये है भाई थोड़ा सीट का है, क्योंकि मैं और पीछे जाना चाहता हूँ एंड आई वांट टू सिट कंफर्टेबली बट आई एम नॉट एबल टू। Honestly, it is taking like anything. Of course, ट्रैक्शन कंट्रोल है, 3 मोड्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आ रही है, कर ऊपर करो, कर दिया। Oh my God, ballistic mode is really nice, dude. आ रही है भाई। 3 angle, 12 degrees, 9 degrees, right, somehow. Woo! It gives you that adrenaline rush. Woo! ब्रेक्स अच्छे हैं और सस्पेंशन भी अच्छे हैं। It's more much better and greater than this thing, जो नॉर्मल F77 है। लीन एंगल, इसमें लीन एंगल क्यों दिया समझ में नहीं आया, ठीक है। बलिस्टिक मोड, पता भी नहीं चल रहा है। That good. Ooh, that whine of the motor, god damn it, dude. It's nice. ग्लाइड पे कॉम्बैट, ग्लाइड पे चलते हैं। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज देयर। कंट्रोल्स में देखते हैं, परफॉर्मेंस, डुअल, रीजन, ट्रैक्शन कंट्रोल। रेन का डाल रखा है ऑफ, विल गो फॉर अनदर राउंड। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल रेन का डाल रखा था। मैं वही सोचूं रेन में, आई थिंक दैट इज, ओह इट इज वाइनिंग, उफ नाइस। इसको ऑफ रोड लेके जा सकते हैं क्या? आई थिंक यस, बिकॉज इट हैज द पावर, इट हैज द रेंज एंड इट हैज एवरीथिंग। ओके, लेट्स सी इफ यू कैन गो। ओके, यू कैन नॉट go into the menu while driving it. That's a good freaking thing. Region level आप यहीं से वो कर सकते हैं, but yeah, I am not sitting on the seat technically. I am sitting on the edge of the seat. तो सीट का थोड़ा मेरे को इशू लगा, बाकी तो ठीक है भाई, बहुत सही है, बढ़िया। सस्पेंशन एवरीथिंग इज नाइस। 0 पे जा सकते हैं, बट जैसे ही स्टार्ट होगी बाइक वो बंद हो जाएगा। Oof, nice. You can actually tour on this. Not kidding, you can tour on this. Except for the seat. इसको हम traction control sport में डाल के hill hold on है, radar on है. This is the radar if you can see. चला हुआ शायद, but मैं ही चूजू की तरह चला रहा तो नहीं चला होगा। Radar off है। 1, 2, 3, let's go. अच्छा, those were blinking because someone was coming from behind. Okay, got it. Let's see if this works because peripheral vision में अभी ये लोग आए. So
फास्ट। हाँ ये देखो, ये लाइट जली ना, ये है तो। अच्छा ये बंदा पीछे था जो मेरे को दिख नहीं रहा है, पेरिफेरल विजन पे भी नहीं है। मिरर्स में ऑफ कोर्स अब अलग अलग होता है मिरर्स का। मैं बैलिस्टिक मोड से निकलूंगा ही नहीं भाई, मैं लूंगा तो ये। ओहो हो, ये लाल 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 दिख रहे हैं। तो कॉम्बैट में जाते हैं, जो नॉर्मली पूरी जनता यूज करने वाली है कॉम्बैट मोड। ट्रैफिक में भी अभी आगे जाके हमें ट्रैफिक मिलेगा। 2 इज गुड, कैन डू। 2 इज नाइस। रीजन आई डोंट, जी इन जनरल में कोई रीजन नहीं पसंद है भाई, बट सस्पेंशन मशीन गुड। ट्रैफिक में अच्छी लग रही है। नाइस। उठे स्मार्ट, इसमें TPMS भी है। टायर प्रेशर आइडियल नाइस। इस बैटरी, हाँ लिमिट चार्जिंग 34%, बैटरी हीट कर गई भाई। ब्लूटूथ, डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल्स, परफॉर्मेंस एंड होल्ड रेडर ऑफ करो भाई, नहीं ऑन करते हैं। ओके वी वांट टू सी सेटिंग्स, डिस्प्ले। चलो देखिए ये अच्छी बात है भाई, स्टार्ट होते ही कहाँ पे हो क्यों हो नहीं पता, ऑफ हो जाएगी सेटिंग्स वाली स्क्रीन। अभी हम है इको मोड में, मैं अभी तक वहां पहुंच जाता बलिस्टिक में, बट ये आर इन इको, विल सी। इको मोड विजन लेवल 1, मेरे को पूरी स्क्रीन ऑरेंज दिख रही है भाई साहब। ट्रैफिक में तो मौत आ जाएगी रडार सिस्टम की। इट विल कंज्यूम मोर बैटरी सेंसर्स देन I don't know. Nice, but for my liking, nah, I don't like this thing, glide mode, because eco mode में इतनी पैसे देगी, eco mode में थोड़ा चलाऊंगा यार glide. At least combat. That's the minimum. Don't worry, आगे ट्रैफिक ही है। ये थोड़ी ज्यादा ही ट्रैफिक नहीं हो गई भाई, मैं गियर डाउन क्यों कर रहा हूँ नीचे इसमें। हाँ ट्रैफिक में ना, ऐसे ट्रैफिक में आयु ग्लाइड मोड ही सही है, क्योंकि आपको उतना वो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कम जाएगी, हीट कम होगी। नाइस। F77 जो रिकॉन है वो ट्रैफिक में ज़्यादा अच्छी है। ये टेक्निकली देखा जाए तो ये ज़्यादा ट्रैफिक में अच्छी है, बिकॉज इट्स बिगर, यू आर इन अ मोर रिलैक्स स्टैंस। इवन द सुपर स्पोर्ट से भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि दिस हैज मोर सस्पेंशन, मोर थिंग्स इट कैन हैंडल। बट ऑफ कोर्स आपका इफ यू हैव दैट कि अरे मुझे तो स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू वांट लाइक दिस। इंडिकेटर देके लेफ्ट जाते हैं। अरे रे रे, बच्ची को पसंद आई बाइक। बट समय कितना हो रहा है? समय इज 5:30 इन द इवनिंग, ऑफिस आवर्स। यू कैन स्टैंड ऑन इट, इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाएगा। खड़े होके चला सकते हो। नाइस। आउच। It's not that heavy. I picked it up. But yeah, you have to give a lot more throttle to go normally. जो ऊपर चढ़ा दूं? चढ़ाते हैं। भाई साहब, ये एडवांटेज होती है कि बिगर सब्सटेंशियल एंड मोर बेटर मशीन। ओडोम 500 किलोमीटर हुआ है अभी तक। ये अभी आई है, हफ्ते भर भी नहीं हुआ लॉन्च हो गया ना, वीक 2 वीक्स मैक्स। और इसके शोरूम्स कम है, तो इसको टेस्ट यूनिट्स भेजने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। अभी RTX 300 आज लॉन्च हुई, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे मिलेगी। इसका चार्जिंग भी अच्छा ही है। इट इज टेलिंग दैट इट विल चार्ज एट होम एंड लाइक नॉर्मली इसकी रेंज होती है 80 तक चार्ज, 80-90 तक चार्ज करो, फुल मत चार्ज करो बोलते हैं। तो फॉर दैट यू विल ओनली गेट 5 आवर्स, 5 घंटे में पूरी चार्ज हो जाएगी। ऑन बोर्ड फास्ट चार्जर है तो 4 घंटे, नॉर्मल चार्जर 5 घंटे, फास्ट चार्जर इनका 2.5 आवर्स। एक इनका फास्टेस्ट चार्जर है जो 1 घंटे में कर देता है, नॉट द फास्टेस्ट, बस 1 लेवल नीचे, जो 1.5 घंटे में कर देता है। हेंस अगर आप ड्राइव पे जा रहे हो, इट विल रेंज अप टू 300 किलोमीटर। अगर आपको यहाँ से गोवा जाना है तो बीच में एक अगर आपको चार्जर मिल गया तो आप लंच के लिए रुकोगे, उसको चार्ज लगाओ, आपको 100% नहीं 2 चार्ज में चली जाएगी।
एक चार्ज में भी चली जानी चाहिए। अगर आप ग्लाइड मोड पे ऐसे चिल करते हुए जाओगे तो ऑफ कोर्स यू विल इजीली मेंटेन 80-100। तो उसके हिसाब से 2 चार्ज में आप गोवा, हैदराबाद टू गोवा जा सकते हो। अब आपको चार्ज कैसे करनी है, दैट यू हैव टू लुक, बिकॉज जो बोल्ट के फास्ट चार्जर्स आते हैं जो 2-3 घंटे में कर देंगे चार्ज, वो आपको दे चार्ज अराउंड 50 रुपीज a unit, and for 2.5 hours extra journey, नॉर्मल बाइक के आपको 12-12.5 घंटे लगेंगे। लाइक आई एम टेलिंग कि आराम से ब्रेक ले लेके, तो आपको इसमें आपको थोड़े ज्यादा लगेंगे, 3-4-5 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे अगर ब्रेक ले लेके। अब ब्रेक के टाइम पे चार्ज कर लोगे तो और बढ़िया है। सलमान खान बन जाऊं, फुटपाथ पे चढ़ा दूं। अभी इसका वो आएगा एक्चुअल कि गटर का पानी कैसा झेलती है ये। F77 तो पानी पानी हो गई थी। मेरे जूते भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल शुक्रिया भाई साहब, बाइक तो बहुत तगड़ी है। इट लुक्स लाइक अ सब्सटैंशियल मशीन कि हाँ भाई, इट्स गॉट समथिंग। That's the super sport. This is the normal one, and that's the X47. God damn, nice. So as you saw the drive, हमारे पास अभी यहाँ पे इनका मैनुअल है। This is the F77 Super Sport का, but so the battery pack, the motors and everything in all the bikes of Ultraviolet is the same. So उन्होंने बोला you can take this and you can go ahead with this because motor and everything is same. मैं यहाँ पे एक performance type picture डाल दूंगा. So the performance of this bike is 40 HP, which is the peak power, or 30 kilowatt, which is equivalent to my Triumph Speed 400, and the torque is 100 Nm. I really could feel the torque कि भाई हाँ भाई है. Speed is 155 kilometers per hour, top speed. हाँ, it's है. But I'll tell you the top speed का ना, वो speed का एक है, I'll tell you. Range is 230 kilometers to 23 kilometers IDC, जो actual में तो आएगी नहीं. So I was thinking around 200 to 250 kilometers range आपको real life में देखने में मिल सकती है. इसमें 2 टाइप के रीजन है, आप ऑफ भी कर सकते हो, और 10 लेवल्स ऑफ रीजन और 4 लेवल्स ऑफ रीजन, R3, R6 एंड R9 रीजन 11. तो आप उसमें सेट कर सकते हो. बैटरी कैपेसिटी 10.3 किलोवाट आवर, जो सबसे बड़ी बैटरी है इनकी. राइडिंग मोड्स हैं भाई साहब, राइडिंग मोड्स आपने देखे होंगे, अमेजिंग. बाकी सेफ्टी है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, डुअल चैनल ABS है, डिस्क स्टेबिलिटी कंट्रोल है, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, AI तो हर चीज़ में AI तो घुसाना ही है सारी कंपनीज को. एंटी कोलिजन सिस्टम जो फ्लिकर कर रहा था पूरा, दैट इज अल्ट्रावायलेट का खुद का ऐप है, सिक्योरिटी असिस्ट एंड एवरीथिंग इज देयर. सो या दैट्स ऑल. इनका अभी प्राइस है, सो द बाइक स्टार्ट्स एट 2.5 lakhs एक्स शोरूम. बेसिकली कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, तो there are 4 colors, which is Cosmic Black, Stellar White, Turbo Red and Cosmic Black. So there are 4 variants of this bike, जो 2.64 lakhs rupees on road हैदराबाद का बता रहा हूँ मैं. 2.64 lakhs, 2.70 lakhs, 2.72 lakhs and 3.15 lakhs. तो बेसिकली जो कलर्स के 2-2 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं. बाकी मेजर चेंजेस कुछ नहीं है. आपको अगर आपको कलर से उतना फर्क नहीं पड़ता, या फिर पड़ता भी है, तो 2-3-4 हज़ार रुपये दे के आप ले सकते हैं. फॉर अ 2.5 लाख बाइक it will be equivalent to a Adventure 390 because the power figures and the actual like अब बाइक हैंडल करने में कैसी है वो almost equivalent to a 390. I just rode the YesD Adventure literally like 12 hours before riding this. मुझे लगा भाई हाँ, I am riding a substantial machine. मुझे ये नहीं लगा कि जैसे मैंने ओला की बाइक चलाई थी, मेरे को लगा कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, कि भाई it टूट जाएगी भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, बट मे बी ये टूट सकती है, अब कोई भी मोमेंट पे टूट सकती है. तो वो था मुझे. बट इस बाइक में मैं चला रहा था, मेरे को सब्सटैंशियल लगी भाई, हाँ भाई कुछ मैं चला रहा हूँ.
और हाँ, सस्पेंशन एंड एवरीथिंग इज नाइस, बट टॉर्क मैं बताता हूँ क्या होता है। आप 0 से 70 जाते हो, टॉर्क बैंड खत्म हो जाता है। टॉर्क का कर्व है 70 जाते ही फ्लैट हो जाता है। देन टू रीवैम्प दैट कर्व यू हैव टू क्लोज द थ्रॉटल एंड पुश इट ओवर अगेन। तो क्या हो रहा है, आप 0 to 70 फुल थ्रॉटल ले रहे हो, मस्त पहुंच रही है, बट उसका टॉर्क बैंड वहां पे खत्म हो गया। तो आप बोलोगे भाई 70 के ऊपर जाएगी नहीं क्या? नहीं, दैट्स नॉट द केस। क्या हो रहा है, आप 0 to 70 एक साथ लेके जा रहे हो, वो प्रॉब्लम है। अगर 0 to 30 गए, फिर आपने थ्रॉटल बंद किया, ट्रैफिक हो गई, थोड़ा कम किया थ्रॉटल, तो द टॉर्क बैंड में पीछे आ जाती है। तो क्या हो रहा है, आप टॉर्क बैंड में अगर मिडिल में हो तो टॉप तक जा सकते हो, बट टॉप पे खत्म हो जा रही है टॉर्क बैंड। तो वो टॉर्क बैंड जो बीच में हो वो आप 70 पे भी रह सकते हो, 100 पे भी रह सकते हो, 100 पे शायद ना हो, बट 120-100 पे आप कहीं बीच में रहोगे तो आपको टॉर्क रहेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, गियर 1 बाइक का एक गियर होता है, टॉर्क खत्म हो जाता है, पावर खत्म हो जाती है, गियर चेंज करते हैं। उसके बाद सेकंड बैंड खत्म होता है, गियर चेंज, थर्ड बैंड गियर चेंज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 गियर होते हैं मोस्टली बाइक्स में। तो 6 टॉर्क बैंड्स होते हैं। तो आपको उतना पता नहीं चलता क्योंकि आप 6 बार गियर चेंज कर रहे हो बाइक्स में। इसमें क्या हो रहा है, आपको गियर तो है नहीं, तो टॉर्क बैंड खत्म हो गया, वापस कैसे लाओगे? थ्रॉटल बंद करो। मैं वही है ना, उसमें सिर्फ 2 गियर है बेसिकली। 0 to 70 एक फुल थ्रॉटल पे, अगर आपने थ्रॉटल बंद कर दिया तो वापस नीचे आ जाएगी, आपको वापस एक और टॉर्क मिल जाएगी। 0 to 70 1, 70 to 150 1, 150 तक नहीं जाएगी मोस्टली, बिकॉज वो 120 पे कैप हो जाएगा, फिर एक और लग के एक और बंद करके खोलना पड़ेगा, 2-3 बार खोलना पड़ेगा, बिकॉज जितना हायर स्पीड यू गो, इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ, इट्स अ एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो वो है। तो मेरे को एक चीज़ वो लगी कि भाई टॉर्क थोड़ा आपको ट्रैफिक वगैरह में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, और रीजन ऑफ कर दोगे तो बेस्ट है, क्योंकि रीजन में मेरे को बैक पेन बहुत गंदा हो रहा था, मैं ऑफ करके ही चला रहा था। थर्ड थिंग इज सीट का मैंने 2-3 बार कंप्लेन करी है। सीट का इशू क्या आ रहा है कि मैं लंबा हूँ नेशनल एवरेज से, आई एम नॉट दैट टॉल ऑल्सो। प्रॉब्लम क्या हो रही है, आई एम सिटिंग ऑन द एज ऑफ द, इधर ये सीट है, फिर ऐसे करके ये सीट है, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, माई बम इज हियर। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, आई वॉन्ट टू गो बैक, मैं और पीछे जाना चाहता हूँ बट जा नहीं पा रहा हूँ। तो वो एक सीट का थोड़ा है, बट वो सीट चेंज करवा सकते। मैंने F77 नॉर्मल वाली चलाई, जो रिकॉन है, वो स्पोर्ट्स है, तो आई वॉज टक्ड इन द बाइक सिटिंग इन साइड, तो मेरे को उतना नहीं लगा क्योंकि मैं पीछे भी नहीं जाने वाला था, क्योंकि आई वॉज टक्ड इन साइड द बाइक, तो मेरे को सीट का उसमें इशू नहीं लगा, बट उस दोनों में सीट सेम है। एडवेंचर में क्या होता है, एक सिंगल सीट रहती है तो बेटर रहता है। इसमें क्या है, पीछे बैठने वाले के लिए अच्छा है क्योंकि 2 सीट है, पीछे बैठने के लिए बहुत अच्छा है, बट सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है। तो सीट का आप अपना खुद राइड करके देखिए, अगर आपको लेनी है ये बाइक, आप राइड करके देखिए कि कैसी लग रही है आपको सिटिंग पोस्चर। वैसे तो फीचर्स भरे पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या डाल दिया अल्ट्रा वॉयलेट ने, फीचर्स तो भर के हैं। सो द फाइनल वर्डिक्ट इज दैट आपको एक बार टेस्ट ड्राइव लेनी ही पड़ेगी। वो 2.5 लाख में इट्स अ वेरी गुड डील। मेरी ट्रायम्फ से सस्ती है ये, बट हाँ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द शॉक वेव। आई टॉक टू दोज गाइज, वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट ईयर एंड तक आएगी शॉक वेव। अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल, आई विल बी राइडिंग अ शॉक वेव सून in an year or so. Thanks for watching guys. Please like, share and subscribe. और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है, F77 रिकॉन की वीडियो भी आएगी अभी, मोस्टली विद इन 3-4 days ऑफ दिस रिलीजिंग, या फिर अगर आप बाद में देख रहे हो ऑलरेडी आ चुकी होगी चैनल पे। सो प्लीज गो सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय। So please whatever. Please I want to reach 1 million.